Good morning, students. Today we will discuss about the next step of nursing process, that is nursing diagnosis. In our previous PPT we have already discussed about the nursing process, its definition, characteristics and steps of nursing process. So we all know that the steps of nursing process are 5. First one is assessment, second one is diagnosis, third one is planning, fourth one is implementation, and fifth one is evaluation. So in our previous PPT we have discussed about the assessment. In assessment there are 4 main points, that is first one is collection of data, second one is organize the data, third one to validate the data, and fourth one is document the data. So we have gathered all the information about the client in our step assessment. Now on the basis of that information we will diagnose the problem, the nursing problem of the client. So let's start with our second step, that is nursing diagnosis. Second step is nursing diagnosis. What we will discuss about in diagnosis, first one is analyze the data. Next, identify health problems, risk and strengths. And third one is formulate diagnostic statements. So let's start with the definition, with the introduction. First we will see what is nursing diagnosis. Diagnosis is the second phase of the nursing process. In this phase, nurses use critical thinking skills to interpret assessment data to identify client problems. देखो डायग्नोसिस क्या है, सेकंड स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का. इसमें हम क्या करते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए हम समझते हैं, इंटरप्रेट करने का मतलब टू अंडरस्टैंड. हम समझते हैं कि जो भी हमने असेस किया है, जो भी डाटा कलेक्ट किया है, उसके आधार पे हम पता लगाते हैं कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम होगी. ओके. नेक्स्ट वन इज़ नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन. देखो, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन को शॉर्ट में हम नंदा बोलते हैं. डिफाइन और रीफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस. हम नंदा के आगे डायग्नोसिस देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बताऊंगी कि डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं और किस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस हो सकते हैं. तो नंदा ने अराउंड 250 से अबव डायग्नोसिस दिए हैं. डेफिनेशन देते हैं डायग्नोसिस की. क्या डेफिनेशन होती है? द ऑफिशियल नंदा, नंदा मतलब नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन. डेफिनेशन ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रेस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशंस, लाइफ प्रोसेसेस और अ vulnerability for that response by an individual, family, group और community. देखो, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? एक क्लिनिकल जजमेंट है जिसके अंदर हम क्लाइंट का जो रेस्पॉन्स है हेल्थ के लिए या फिर उसके जो लाइफ के प्रोसेस के लिए जो रेस्पॉन्स है उसको हम लिखते हैं. कुल मिला के उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग या उसके डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका स्टेटमेंट, उसका जजमेंट होता है नर्सिंग डायग्नोसिस. Let's see another some short definitions of nursing diagnosis. A clinical judgment about individual, family or community responses to actual or potential health problems, life processes. A nursing diagnosis provides the basic for selection of nursing interventions to achieve outcome for which the nurse is accountable. Professional nurses are responsible for making nursing diagnosis. तो एक नर्सिंग डायग्नोसिस हमें एक बेसिस, एक आधार प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग हम आगे प्लान कर सकते हैं. पहले हमें देखो प्रॉब्लम पता चलेगी क्लाइंट की, उसी के आधार पे हम प्लान करेंगे और फिर इंटरवेन करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस हम ले सकते हैं. तो नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी प्लानिंग. सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस.
First one is it states clear and concise health problem. It derived from existing evidences about the client. It is potentially amenable to nursing therapy. It is the basis for planning and carrying out nursing care. Okay. Next, see the types of nursing diagnosis. टाइप्स में देखो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टोटल 5 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. फर्स्ट वन इज़ एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकेंड वन इज़ रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड वन हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस, possible nursing diagnosis, syndrome nursing diagnosis. So we will discuss it about one by one. Actual nursing diagnosis. A clinical judgment about human experience or responses to health conditions or health processes that exist in an individual, family or community. देखो ये कि ये डेफिनेशन हमने डायग्नोसिस की देखी थी, बस इसमें आपको लगाना है डैट एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी. एक्चुअल का मतलब होता है एट प्रेजेंट, अभी जो क्लाइंट में प्रॉब्लम प्रेजेंट है उसका डायग्नोसिस, उसका पता लगाना कहलाता है एक्चुअल. आगे जाके होगा नहीं होगा वो नहीं, अभी जो प्रॉब्लम है उसको. एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट. जब हम असेसमेंट करते हैं, जब क्लाइंट के रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तब ये क्लाइंट में प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. ओके, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो वो तो अभी हो रही है, हमें दिख रही है, वो प्रेजेंट है, तो हमने ये नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाएगा. डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, वो ढंग से सो नहीं पा रहा है क्लाइंट, तो हम लिखेंगे डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न. तो ये हुआ हमारा एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि एट प्रेजेंट, जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही है प्रॉब्लम क्लाइंट में. सेकंड देखो, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस. रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक्चुअल से अपोजिट है. एक्चुअल में तो एट प्रेजेंट होता है, ये होता है इन फ्यूचर, आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकती है. इट इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट the presence of risk factors indicate that a problem is likely to develop unless nurses intervene. नो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लूज़. अभी क्लाइंट में ये प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होने की वजह से हमें ये लगता है कि आगे चल के क्लाइंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम इनके डायग्नोसिस में भी ऐसे ही लिखते हैं, रिस्क फॉर दिस, रिस्क फॉर, मतलब हो सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, अ क्लाइंट विद डीएम मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम इज़ एट रिस्क, इट इज़ एट हाई रिस्क देन अदर्स. इसके जैसे रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इंजरी, जैसे डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है या फिर इम्यूनिटी जिसकी कम है तो उसको रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है. रिस्क फॉर इंजरी उसको लग सकती है. तो ये क्या हुए, ये रिस्क वाले हुए, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस. थर्ड वन इज हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस. describes human responses to level of wellness in an individual, family or community that have a readiness for enhancement. Clinical judgment about a person's, family's or community's motivation and desire to increase well-being. देखो ये पॉजिटिव डायग्नोसिस है. हेल्थ प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हेल्थ को बढ़ाना, बढ़ावा देना. तो ये ह्यूमन रेस्पॉन्सेस को डिस्क्राइब करते हैं कि क्लाइंट में कितनी रेडिनेस है एनहांसमेंट की, कितना वो जल्दी जल्दी ठीक होना चाहता है. ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल रेडीनेस फॉर एनहांस्ड फैमिली कोपिंग, वो अपनी फैमिली के बीच में जाके फैमिली के साथ रहना चाहता है. रेडीनेस फॉर एनहांस्ड सेल्फ एस्टीम, वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं खुद करना चाहता है. तो ये है हेल्थ प्रमोशन के डायग्नोसिस के रेडीनेस फॉर दिस, रेडीनेस फॉर दिस.
नेक्स्ट इज पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। देखो, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस इज वन इन विच एविडेंस अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीट और अनक्लियर। A possible diagnosis requires more data either to support or to refuse it. Possible nursing diagnosis, possible का मतलब होता है संभावना। तो हम यहाँ पे जस्ट assumptions यूज़ करते हैं, हम आइडिया लगाते हैं, इनके बारे में हमारे पास एक्चुअल इनकम्प्लीट और अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है। जब हम क्लाइंट की पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की है तो हमें लगता है संभावना है इस चीज़ की। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी, पोटेंशियल रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एनफोर्स्ड बेड रेस्ट। ये दो एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हमने कहा पता नहीं किस कारण, मतलब अननोन एटियोलॉजी के कारण हमने बोला है कि शायद संभावना है कि ये क्लाइंट अपने आप को सोशली आइसोलेट कर ले, या फिर बेड रेस्ट, कंटिन्यूस बेड रेस्ट के कारण उसमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। लास्ट वन इज सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। सिंड्रोम नर्सिंग, सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर या ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। यहाँ पे ग्रुप क्लस्टर है किसका? नर्सिंग डायग्नोसिस। एक ही प्रॉब्लम के बारे में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम लिखने के बजाय अगर हम ग्रुप में सिंड्रोम वर्ड यूज़ ले लें या ग्रुप में एक लाइन लिख दें तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे a clinical judgment describing a specific cluster of nursing diagnoses that occurs together and are best addressed together and through similar interventions। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी क्लिनिकल जजमेंट या प्रॉब्लम लिखने, अलग अलग प्रॉब्लम्स लिखने की बजाय अगर हम ग्रुप में ही लिख दें सिंड्रोम तो उससे हमें क्लियर। जैसे एग्जांपल है रेप ट्रॉमा सिंड्रोम। अगर किसी गर्ल के साथ रेप हुआ है तो वो एंजाइटी भी होगी, उसे फोबिया भी होगा, उससे रेस्टलेसनेस होगी, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, उसको भूख नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स है। तो ये अलग अलग लिखने की बजाय अगर हमने एक लिख दिया रेप ट्रॉमा सिंड्रोम तो इससे क्लियर हो गया कि ग्रुप ऑफ डायग्नोसिस इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ नंदा। मैंने बताया ना आपको, नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, इन्होंने नर्सिंग डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स बताए। जो नंदा ने डायग्नोसिस लिखे हैं उसमें जो नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब अगर कोई आपसे पूछे तो इसका मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको शब्दों में लिखना। तो उसको लिखने के लिए हर डायग्नोसिस में 3 चीज़ें होती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? फर्स्ट वन इज़ द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, second one is the etiology, and third one is the defining characteristics। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मैंने बोला सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम है वो सबसे पहले लिखनी होती है हमें। उसके बाद में सेकेंड पार्ट होता है द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब कॉज, कंपोनेंट ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाइज कॉजेज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। जो हेल्थ प्रॉब्लम का कारण, जो पहला हमने लिखा हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसका क्या कारण था वो सेकेंड पार्ट होंगे, कॉजेज या इटियोलॉजी। थर्ड वन इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर the cluster of signs and symptoms that indicate the presence of health problem। थर्ड वन में हम लिखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपने कहा ये प्रॉब्लम है तो सेकंड में उसका कारण और थर्ड में उसका साइंस एंड सिम्टम्स लिखने होते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, द बेसिक 3-part nursing diagnosis statement is called the PES format and includes the following। PES में क्या होगा? P for problem, E for etiology एंड S for signs and symptoms। तो हर नर्सिंग डायग्नोसिस के 3 पार्ट होते हैं PES।
प्रॉब्लम में हमने देखा क्लाइंट की प्रॉब्लम, जिसको नंदा लेबल भी बोलते हैं। ई फॉर इटियोलॉजी, जिसमें हम कॉजेज लिखते हैं, ठीक है, कारण। एंड थर्ड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या साइंस एंड सिम्टम्स बोल दो। एज फॉर साइंस एंड सिम्टम्स, जो डिफाइन करती हैं कि ये लक्षण हुए, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम इस टेबल में देखिए, आप टेबल में PES लिखा हुआ है, P फॉर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट को पेन है, इसका कारण क्या है, एटियोलॉजी क्या है, सर्जरी ऑफ एब्डोमेन। और थर्ड वन क्या, साइंस एंड सिम्टम, क्या लक्षण हुए, तो पेन स्केल से हमने देखा और डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट। तो ये तीन चीज़ें हमने ऐसे लिख दी। अब हम देखते हैं एक नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट को पेन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सडन पेन अगर हो रहा है तो हम लिख देंगे एक्यूट पेन। अब पेन रिलेटेड टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी को जोड़ने वाला वर्ड होता है रिलेटेड टू। तो हम क्या लिखेंगे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी, सर्जरी के कारण पेन हो रहा है। फिर हमें लिखना है साइंस एंड सिम्टम्स। तो इटियोलॉजी और साइंस एंड सिम्टम्स को जोड़ने वाला वर्ड होता है एज एविडेंस्ड बाय, एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम ऐसे लिखते हैं, हमेशा याद रखना। प्रॉब्लम और इटियोलॉजी के बीच में तो रिलेटेड टू, और इटियोलॉजी और साइंस एंड सिम्टम्स के बाद में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं एज एविडेंस्ड बाय। तो ये हुआ हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। देखिए, हम देखते हैं अब नर्सिंग डायग्नोसिस हमने अभी देखा 3 पार्ट वाले PES वाले नर्सिंग डायग्नोसिस देखे। अब हम देखते हैं 3 टाइप से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं डायग्नोसिस को। पहला तो आया 1 पार्ट स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज़ 2 पार्ट स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन इज़ 3 पार्ट स्टेटमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो चलता है नर्सिंग डायग्नोसिस वो होता है बेसिक 2 पार्ट्स। इसमें क्या, 2 पार्ट्स में 2 ही होंगे, P और E होगा, S नहीं होगा। P का मतलब प्रॉब्लम, E का मतलब कॉज। P फॉर स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट रेस्पॉन्सेज एंड E फॉर फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू और प्रोबेबल कॉजेज ऑफ द रेस्पॉन्सेज। इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है रिलेटेड टू। फ्रेज इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप। अब देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं 2 पार्ट डायग्नोसिस। 2 पार्ट मतलब प्रॉब्लम और इटियोलॉजी। प्रॉब्लम और इटियोलॉजी के बीच में हमेशा क्या लिखेंगे, रिलेटेड टू। तो देखो, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल इंसिजन, इंसोम्निया रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक 3 पार्ट। 3 पार्ट में, वहाँ पे तो 2 पार्ट में P और E ही था, 3 पार्ट में क्या होगा, P, E एंड S भी होगा। P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर इटियोलॉजी एंड S फॉर साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे, जो लक्षण दिखाई दे। तो देखो, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस कैन बी डॉक्यूमेंटेड बाय यूजिंग द 3 पार्ट स्टेटमेंट। जो एक्चुअल मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्चुअल का मतलब होता है जो एट प्रेजेंट, जो एग्जिस्ट कर रही है क्लाइंट में प्रॉब्लम, वो नॉट यूज्ड फॉर रिस्क डायग्नोसिस। तो देखो, बट बेसिक 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। बेसिक 3 पार्ट में P मतलब प्रॉब्लम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक्यूट पेन, और E क्या है, सर्जिकल इंसिजन। इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड रिलेटेड टू। अब हम लिख रहे हैं साइंस ऑफ सिम्टम्स में, कैसे हमें पता चला कि पेन हो रहा है, एज एविडेंस्ड बाय वर्बलाइजेशन, क्लाइंट ने बोल के बताया, ठीक है। अब 3 पार्ट में और देखते हैं हम, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियर नहीं है क्लाइंट का, तो ये हो गई प्रॉब्लम, रिलेटेड टू यूज़ करते हैं। फिर इटियोलॉजी, accumulation of pulmonary secretion, as evidenced by signs and symptoms लिखते हैं हम, crackles on auscultation। अब इसका देखो, क्लाइंट का एयरवे क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी सिक्रीशन कलेक्ट हो गए हैं। कैसे पता चला, जब हमने ऑस्कल्टेट किया। ऑस्कल्टेशन क्या होता है, हमने असेसमेंट में पढ़ा, स्टेथोस्कोप के थ्रू जब हम लंग साउंड सुनते हैं, तो ऑस्कल्टेशन में क्रैकल्स की साउंड आई, इसका मतलब कि सिक्रीशन जमा है।
तो ये हमने 3 पार्ट का डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए हाइपरथर्मिया, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, रिलेटेड टू अंडरलाइन इन्फेक्शियस प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा PES में प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड साइंस एंड सिम्टम्स। रिलेटेड टू वर्ड याद रखना है आपको और एज एविडेंस्ड बाय याद रखना है। नाउ बेसिक वन पार्ट में हमें कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट प्रॉब्लम लिखनी है, कॉजेज़ नहीं लिखना, साइंस एंड सिम्टम्स नहीं लिखना है। और इसको क्या कहते हैं, नंदा लेबल भी बोलते हैं। द डायग्नोस्टिक लेबल आर डिफाइंड एंड टेंड टू बिकम मोर स्पेसिफिक। द इंटरवेंशंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लेबल इटसेल्फ। एटियोलॉजी मे नॉट नीडेड, एटियोलॉजी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एटियोलॉजी की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंड्रोम एंड वेलनेस डायग्नोसिस कंसिस्ट नंदा लेबल ओनली। एग्जाम्पल रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, तो सिर्फ प्रॉब्लम लिखा हमने, ना हमने रिलेटेड टू लिखा, ना हमने एज एविडेंस्ड बाय लिखा। स्पिरिचुअल वेलबींग, तो ये डायरेक्ट वन लेबल समझ लो आप, नंदा लेबल्स बोलते हैं इनको। देखो हमने ये डिस्कस कर लिया कि डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं, PS फॉर्मेट हमने डिस्कस किया, PES। अब हम देख रहे हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए, अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट दैट मेड बाय नर्स बाय देयर एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज आर लाइसेंस्ड टू ट्रीट। Whereas medical diagnosis, a medical diagnosis is made by physician। तो आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, जो नर्स फॉर्मुलेट करती है वो नर्सिंग डायग्नोसिस, जो डॉक्टर और फिजिशियन लिखता है वो मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पॉन्स टू एन इलनेस और अ हेल्थ प्रॉब्लम। मेडिकल डायग्नोसिस रेफर्स टू डिजीज प्रोसेसेस। देखो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं, जो इलनेस के कारण क्लाइंट को प्रॉब्लम हुई है वो उसका क्या रेस्पॉन्स है, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं कि क्लाइंट को कौन सी डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ फोकस होता है मेडिकल डायग्नोसिस और क्लाइंट फोकस होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस में चेंज एज द क्लाइंट्स रेस्पॉन्सेस चेंज। ओके, क्लाइंट की रेस्पॉन्सेस चेंज होने के साथ साथ चेंज होगा, लेकिन बीमारी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मेडिकल डायग्नोसिस चेंज नहीं होता है। अ क्लाइंट्स मेडिकल डायग्नोसिस रिमेन द सेम फॉर एज लॉन्ग एज द डिजीज इज़ प्रेजेंट। अब जो बीमारी है वो बीमारी वही रहेगी, ऐसा तो है नहीं उसका नाम चेंज हो जाएगा, अस्थमा है और फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, ये तो है नहीं। लेकिन अस्थमा के साथ में जो क्लाइंट प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है वो चेंज हो सकती है। पहले हो सकता है उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो, खांसी हो, लेकिन हमने अच्छी केयर दी तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन डिजीज़ तो वही रहेगी। एक और टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस केयर फोकस्ड, मेडिकल डायग्नोसिस एटियोलॉजी फोकस्ड। नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाइज रिस्क एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट। Medical diagnosis identifies as nearly possible the specific clinical entity that is causing illness. Focused nursing diagnosis focused on signs and symptoms on the patient and his or her caregiver. The medical diagnosis specify the pathology. Nursing diagnosis focused on person and their physiological, psychological, all responses to illness, whereas medical diagnosis focus on illness. Example, ineffective denial related to difficulty coping with new diagnosis of heart attack. And example of medical diagnosis is MI, that is myocardial infarction. अब देखिए जो डिज़ीज़ है उसके साथ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्लाइंट फोकस होता है, क्लाइंट का जो रेस्पॉन्स होता है उसमें वो नोट करते हैं, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस में हम डिज़ीज़ को फोकस करते हैं। तो जैसे डिज़ीज़ है अस्थमा, तो इसका नर्सिंग अस्थमा में क्या होगा, ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं होता है, तो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। मेडिकल डायग्नोसिस अगर है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, CVA जिसको बोलते हैं, तो इसका नर्सिंग डायग्नोसिस एक्टिविटी इंटॉलरेंस।
मेडिकल डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस, तो इसका नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन। मेडिकल डायग्नोसिस एम्पुटेशन, एम्पुटेशन का मतलब होता है रिमूवल या फिर कटिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, हाथ या पैर को काट के अलग कर देना। तो इसके कारण नर्सिंग डायग्नोस क्लाइंट क्या प्रॉब्लम सफ़र करेगा, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। ठीक है, तो ये सब हुआ, हमने डायग्नोसिस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि नंदा ने बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस दिए हैं। ये सारे कौन से हुए, वन पार्ट, देखो जिसको नंदा लेबल भी बोल सकते हैं हम, ये हुए सारे वन पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये देखिए जैसे क्लास है सर्कुलेशन, तो इसके लिए क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं, ये सारी लिस्ट आपके सामने है, आप इसको नोट करिएगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफ्यूजन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव रीनल परफ्यूजन, इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। नेक्स्ट क्लास इज रेस्पायरेशन, अगर क्लाइंट को रेस्पायरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, इम्पेयर्ड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, डिसफंक्शनल वेंट्रिलरी वीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास इज फिजिकल रेगुलेशन, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन हिमेटोलॉजिकल, ब्लड से रिलेटेड, इम्यूनिटी के रिलेटेड एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के रिलेटेड। रिस्क फॉर एडवर्स रिएक्शन टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, risk for allergy responses, risk for unstable blood glucose level, risk for imbalanced body temperature, risk for electrolyte imbalance, readiness for enhanced fluid balance, deficient fluid volume, risk for deficient fluid volume, excess fluid volume, risk for imbalanced fluid volume, hyperthermia, risk for hyperthermia, hypothermia, risk for hypothermia, risk for perioperative hypothermia, neonatal jaundice, risk for neonatal jaundice, latex allergy response, risk for latex allergy response, risk for impaired liver function, ineffective thermoregulation. नेक्स्ट क्लास इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में इनडाइजेशन, डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, इंटरप्टेड ब्रेस्ट फीडिंग, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड ब्रेस्ट फीडिंग, ineffective infant feeding pattern, imbalanced nutrition less than body requirement, readiness for enhanced nutrition, obesity, overweight, risk for overweight. नेक्स्ट क्लास इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होगी, बाउल इनकंटिनेंस, इनकंटिनेंस मीन्स लॉस ऑफ कंट्रोल, कॉन्स्टिपेशन, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, dysfunctional gastrointestinal motility, risk for dysfunctional gastrointestinal motility, impaired urinary elimination, readiness for enhanced urinary elimination, functional urinary incontinence, overflow urinary incontinence, reflex urinary incontinence, stress urinary incontinence, urge urinary incontinence, risk for urge urinary incontinence, urinary retention, risk for urinary tract injury. Next class is skin and tissue. स्किन एंड टिश्यू से रिलेटेड रिस्क फॉर कॉर्नियल इंजरी, कॉर्निया जो आई का कॉर्निया है उसकी बात हो रही है, इम्पेयर्ड डेंटिशन, रिस्क फॉर dry eye, impaired oral mucous membrane, risk for impaired oral mucous membrane, risk for pressure ulcer, impaired skin integrity, risk for impaired skin integrity, risk for thermal injury, impaired tissue integrity, risk for impaired tissue integrity, risk for vascular
ट्रॉमा। नेक्स्ट क्लास इज न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, इसमें ब्रेन और नर्व्स का आएगा। डिक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल अडेप्टिव कैपेसिटी, ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया, रिस्क फॉर ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया, disorganized infant behavior, readiness for enhanced organized infant behavior, risk for disorganized infant behavior, risk for peripheral neurovascular dysfunction, unilateral neglect. Next, comfort. Anxiety, impaired comfort, readiness for enhanced comfort, death anxiety, fear, acute pain, chronic pain, labor pain, chronic pain syndrome. नेक्स्ट क्लास इज सेल्फ केयर, खुद की केयर खुद करना, impaired home maintenance, bathing self care deficit, dressing self care deficit, feeding self care deficit, toileting self care deficit, readiness for enhanced self care, self neglect. Next is health hazards. Health hazards related: risk for aspiration, risk for bleeding, risk for disuse syndrome, risk for falls, risk for infection, risk for injury, risk for perioperative positioning injury, risk for shock, risk for sudden infant death syndrome, risk for suffocation, delayed surgical recovery, risk for delayed surgical recovery, impaired swallowing, risk for trauma. So student, this is all about nursing diagnosis. आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आपको रजिस्टर में लिखनी है और अच्छे से समझनी है। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।